I would request everybody to leave whatever you are doing because we are going to head for our next session of Dev Dutt Patnaik ji. Please be settled for the next session. Our next conversation moves into a world many of us grew up listening to. Stories of God, goddesses, epics, and timeless myth that somehow never lose their magic. Whether it was hearing these stories from grandparents, reading them as children, or discovering them again as adults, mythology has a special way of staying with us. The stories may be ancient, but the question they raise about life, choices, power, love, and destiny feels just as relevant today. To help us explore this fascinating universe, we have with us Mr. Dev Dutt Patnaik. A medical doctor by training, he is one of India's most loved mythologists. He has written over 50 books and more than 1,500 newspaper columns on mythology, management, and philosophy. Many of you will know his celebrated work such as Jaya, an illustrated retelling of the Mahabharata, Business Sutra, and Baksara Trap, where ancient stories find surprising connection with modern life. In conversation with him today, we have Shalini Modi ji, an author, astrologer, and a passionate student of Indian scriptures, including the Vedas, Puranas, and epics. Through her books such as Rasas in Divine Relationship, Immortality, a Boon or a Curse, as her latest work, The Eternal Sun, she explores mythology and its symbolism while drawing meaningful connection with contemporary life. So settle down because what we promise here is a very thoughtful and engaging conversation. Please join Dev Dutt Patnaik and Shalini Modi on stage. Varun, who has but 1,000 eyes, Indra 100, you and me too. Namaste Devdaji, Namaste everyone. Welcome to the Nainital Literature Festival. It's a pleasure to be in conversation with you. And I think my association with your books goes back more than a decade when I first bought the retelling of the Mahabharata for my son. And he just loved the family tree that was created by you because it's so well explained, such a difficult lineage to the little readers. And coming to Mahabharata, I've heard you saying that we pay too much attention to the war that ensued between the Pandavas and the Kauravas and the victory of Pandavas. But little do we dwell upon the aftermath of the war, the playing out of Krishna's curse, and the passing away of the Pandavas. When we talk about Ramayana also, we mainly talk about the war that ensued between Ramji and Ravan and everything that leads up to it. Puranas hold many stories of demons getting vanquished by gods and goddesses. So I have a question for you. Do you think our gods love war, or do you think they stand for peace? Now, that's a great question. So if you look at all the posters nowadays of the gods, and if you see the kind of, recently Ram Navami or Diwali, sab jagah they will show Ram shooting an arrow. No sign of him with his wife, with Hanuman. Kind images of gods are disappearing. Angry images are appearing. Now, and it's inspired by DC Comics, Marvel Comics. So it's done by people who have never read the scriptures. It's done by people who are fascinated by Planet of the Apes. So, I mean, you see the angry Hanuman poster. So everybody's angry. Now, who are angry? Helpless people are angry. जो बेबस होते हैं ना, उन्हें गुस्सा आता है. भगवान बेबस नहीं हो सकते. तो अगर भगवान बेबस नहीं हो सकते, तो फिर वो गुस्सा नहीं हो सकते. तो ये एंग्री हनुमान पोस्टर तो मुझे सनातनी नहीं लगता है. ये तब ये कुछ और ही है. कुछ नए नए धर्म के विचार हैं. तो जो शास्त्र में लिखे गए हैं कि देवता, इवन व्हेन राम इज फाइटिंग इन द बैटलफील्ड, ही विल बी लाइक अ डांसर, ही विल बी लाइक अ पोएट. उनके आंखों में, इफ यू सी द ओल्ड इमेजेस, इफ यू सी हॉलीवुड स्कल्पचर्स एंड ऑल दैट, द गॉड्स आर वेरी रिलैक्स्ड व्हेन दे, इवन व्हेन दे फाइटिंग द वॉर, बिकॉज उनको पता है आगे क्या है, पीछे क्या है, क्या होने वाला है.
गुस्सा कुछ नहीं है, गुस्सा उसी को होता है जो अटैच्ड होता है। तो हमारे जो देवी देवता है उनके पास हमेशा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो शिव जी नाचते हैं, ही इज अ डांसर, ही इज ऑल्सो म्यूजिशियन, उनके हाथ में डमरू होता है। लेकिन आजकल के बच्चे केवल त्रिशूल देखते हैं। सो ट्रू। हाँ, श्री कृष्ण को आजकल हम केवल अर्जुन के साथ देखते हैं, कभी राधा के साथ अभी देखते ही नहीं है। तो हम भूल गए कि इतना ब्रोमांस कि आप रोमांस भूल गए। तो ये ब्रोमांस वाले लोग हैं जो रोमांस पसंद नहीं करते। और रोमांस में तो मुरलीधर कृष्ण होंगे, केवल चक्रधर नहीं होंगे। तो ये जो है कृष्ण की जो बांसुरी है, लक्ष्मी के पास घड़ा है, सरस्वती के पास वीणा है, विष्णु जी के पास एक शंख है। सो ऑल द गॉड्स हैव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे हैव एन ऑर्केस्ट्रा. This is forgotten. We focus so much on weapons and war because the people who are promoting new kinds of Hinduism, ये नया 21st century Hinduism है, तो ये कुछ नया कुछ कल्ट निकला हुआ है। ये आता है जाता है, ऐसे बहुत आए हैं हिंदुइज्म में। सो आई थिंक आई वांटेड चिल्ड्रन टू नो कि ये जो नैरो विजन ऑफ हिंदुइज्म है, देयर इज अ बिग वाइड विजन आउट देयर, एंड यू हैव टू डाइल्यूट दीज थिंग्स एंड शो देम कि कॉन्सेंट्रेटेड डोज में जो बोल रहे हैं, दैट्स नॉट द ओनली। मसाला में बहुत स्वाद है, अलग अलग प्रकार के मसाला है। चिलीज आर नॉट द ओनली स्पाइस, एंड चिलीज डिडंट कम फ्रॉम इंडिया. So these are important things to tell people, that Indian curry is not just chilies, and chilies came from Colombia. Oh, I didn't know that. So इसीलिए आपने आपकी जो किताब है अस्त्र शस्त्र, द वेपन्स ऑफ हिंदू गॉड्स, जो आपने बच्चों के लिए लिखी है, उसमें आपकी लाइन शुरू होती है कि गॉड्स एंड गॉडेसेस हैव वेपन्स टू कीप द वर्ल्ड सेफ, एंड दैट रियली अट्रैक्टेड मी. एंड देन आपने मेरे को कल बताया कि कैसे इसीलिए आपने गाना बजाना फिर साथ में लिखी, क्योंकि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भूल जाते हैं. सो दिस चेंजेस द नैरेटिव फ्रॉम वायलेंस टू प्रोटेक्शन, फ्रॉम लव ऑफ वॉर टू नेसेसिटी. सो कैन यू प्लीज गिव योर पर्सपेक्टिव? See, one of the things you will see when the TV रामायण में आता है या महाभारत आता है, they will never talk about consequence. भी रामायण में जब रावण का वध होता है तो मंदोदरी कहती है राम को कि मेरा पति विलन था, ही वॉज अ बैड पर्सन, बट वो मेरा पति था, तो आपने मुझे विधवा बना दिया है, तो मैं आपको श्राप देती हूं कि आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा. जब वो वाली को मारते हैं तो तारा वही कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पति विलन है, लेकिन आपने मुझे विधवा बनाया तो आपको दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा. यानी कि जब भगवान को भी अपने कार्य, अच्छा बुरा का बात नहीं है, योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस. दिस आइडिया इज फाउंडेशनल इन रामायण. महाभारत में जब श्री कृष्ण धर्म स्थापना करते हैं, उन्हें गांधारी का श्राप लगता है और वो निर्वंश हो जाते हैं. तो हमारे शास्त्रों में देवता जो धरती पे है वो भी निर्वंश हो जाते हैं, चूंकि उन्होंने युद्ध में भाग लिया. तो ये है रामायण महाभारत की संपूर्ण रामायण, संपूर्ण महाभारत, जो बॉलीवुड नहीं दिखाएगा. यहां पे दे आर मोर इंटरेस्टेड कि राम जी को हम शाकाहारी बनाएंगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दीज पीपल, कि वे जो शास्त्र के अंदर जो पंचम वेद है वो क्या समझाना चाहती है, वो डेप्थ में इंटरेस्ट नहीं है उनको. उनको वेजिटेरियन फूड सेल करने का एक मार्केटिंग प्लॉय मिल जाता है. And that shows the shallowness of the thinking, which I feel sad कि जो शास्त्र है वो इतने डेप्थ है यहाँ पे, तो ये इतना shallowness क्यों है? I think because वो पढ़ते ही नहीं है इतना. पढ़ते नहीं है तो गुरुजी की सुनते हैं ना, तो गुरुजी पढ़ते हैं उनके लिए, आउटसोर्स किया है गुरुजी को. गुरुजी आप पढ़ के बताइए. So that's what happens, and I think this is what one has to understand when you are reading these scriptures. So they are showing that life is not just about fighting. अभी देखिए, there's a war going on in one part of the world. उनको कर्म के बारे में कभी उनके फिलॉसफी में है ही नहीं. So they genuinely believe that हम जीत जाएंगे. और हमारे शास्त्र में बोलते हैं कि भैया तू जीतेगा तभी भी श्राप लगेगा. जो the victorious will be cursed is a very consistent theme in रामायण and महाभारत, जो आपको बाइबल में नहीं मिलेगा. And this is, I keep telling people, इनको कर्म का ज्ञान नहीं है और हम भी कर्म का ज्ञान भूल रहे हैं. तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में we have to tell people that actions have
consequences. But ये एक छोटी सी बात कि victorious shall also be cursed, तो श्राप सबको लगेगा, is something that is not understood. And it's a very difficult idea. इसलिए जब आप महाभारत पढ़ते हो, जो विलन होता है वो भी स्वर्ग जाता है, तो आप लोग विलन कैसे गया, स्वर्ग में जाना चाहिए. So these kind of complexities that are brought in. Villain because उसको आपने मार दिया ना, तो punishment हो गई. So when a person gets, हम कोर्ट क्या कहता है, बा इज्जत रिया करना ना, तो you are now can come back to society not as an ex-convict, but you have been cleansed. तो उनको जब आप युद्ध में मारते हो तो उनका punishment खत्म हो गया, तो फिर वो स्वर्ग जा सकते हैं ना. लेकिन मुझे जितने भी लोग पढ़ते हैं मेरी किताब, सर व्हाई आर कौरवास गोइंग टू हेवन, आई सेड बट दे लॉस्ट द बैटल ना, पनिशमेंट हो गया. हाउ लॉन्ग डू यू पनिश अ पर्सन, व्हेन डू यू से दैट ओके नाउ ही इज नॉट अ क्रिमिनल एनीमोर, हाउ मच पनिशमेंट इज एडिक्वेट पनिशमेंट. 10 साल मारना, क्या करना बताओ मुझे, गिव मी ए नंबर दैट टेल्स. एंड दीज आर द आइडियाज दैट द रामायण एंड महाभारत इज ट्राइंग टू प्रेजेंट. And this is the way you study scriptures. It makes you think, it asks you difficult questions. फिर आप थोड़ा, you relax, you don't get angry. I think वो मनन बहुत जरूरी है पढ़ने के बाद. जब मैं गुस्से वाले लोग देखता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है शास्त्र नहीं पढ़े हैं, या शास्त्र हजम नहीं कर पाए, या हजम कर पाए लेकिन वो अंदर assimilate नहीं हो पाए. Actually assimilation बहुत difficult है. You know how, you work with astrology, you know how these things are. It's आप समझ, अगर आपको कहीं जातक में दिखाई देगा कि देयर इज अ प्रॉब्लम, सामने वाले पहले बोलेगा सर उपाय दीजिए. एकदम सही. पहले बोलेंगे कि उपाय दीजिए. हम उपाय वाले लोग हैं, इसलिए हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चलता है, बिकॉज़ हर चीज का एक उपाय निकलता है. इसीलिए आपने जो गरुड़ पुराण लिखी है, एंड यू अनरावल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ ऑफन फियर्ड टेक्स्ट, delving into the life, afterlife, and also a lot of rituals connected to the death. So आपने एक बहुत interesting concept उसमें कहा है कि कैसे yum can be connected and associated with accountancy, and I found that amazing. So please explain to our listeners. So see, one of the reasons mythology exists is because death remains a mystery. आप इलॉन मस्क को जाके पूछिए मरने के बाद होता क्या है. आपके पास अरब खरब धन है, इतना इंटेलिजेंट आदमी हो, इतना कैपेबिलिटी है आपके, आप सिर्फ बताइए मरने के बाद होता क्या है. तो जितना भी पावर है, जितना भी पैसा है, जितना भी नॉलेज, वो एक चीज नहीं बता सकता है कि वो मरने के बाद क्या होने वाला है. दिस इज अनफॉर्चुनेट फैक्ट ऑफ लाइफ. इसके लिए हमें कथा चाहिए, और यहीं से मिथोलॉजी का जन्म होता है. सो द फर्स्ट प्रूफ, मिथोलॉजी की शुरुआत मृत्यु से शुरू होती है. And when you understand death, you understand death rituals. That is how you start understanding mythology. So if you study mythology, you begin with death rituals. Or death rituals mein, so I was reading scriptures and I was reading it, and suddenly it struck me that when you read the Bible, तो अगर आप इस्लाम पढ़ते हो, तो वहाँ पे when you die, क़यामत का concept आता है कि आपको मरने के बाद you are buried and then you one day you wait for a particular time and a particular day आपका क़यामत, that is judgment day के दिन you'll stand in front of God and you will be judged for your actions. इसे judgment day कहते हैं. मैंने देखा ये concept ना हिंदुइज्म में है, ना बुद्धिज्म में है, ना जैनिज्म में है. ये क़यामत का concept है ही नहीं. But everybody is talking about God, God, all gods are the same, all religions are the same. I said, but Qayamat ka concept is there in West Asia. It's there in Greek mythology, it is there in Egyptian mythology. So even pre-monotheistic mythologies, it is not there in Hinduism. So when I tell this, first of all, people are alarmed. ऐसे नहीं, हमारे पास भी होता है Judgment Day, because everything India should have, right? So I go and see that नहीं है, Qayamat की concept नहीं है, क्योंकि वहाँ पे the belief is you live only once. When you believe that you live only once, then you have to have a judgment. Have I lived my life the right way? Haram, halal, Jannat, Jahannam, all that makes sense. But the moment you say one culture is there on the other side of the Indian Ocean, which says that rebirth is important, and you don't live one life,
then you don't need the concept of Qayamat. Now it's a very different way of looking कि तुम्हारी जिंदगी ने तुमने क्या किया है, कितना ऋण लिया है, how much debt have you taken, which means how much have you consumed. And ऋण से मुक्ति तो ज्यादा debt, कम debt, credit, debit, so it's an accounting system. And accounting, so your god of death, Yamraj, becomes the god of accounting. कि वो हिसाब किताब देखते हैं, और यमराज को धर्मराज कहा गया है बिकॉज द अकाउंट्स पे बोलेंगे भैया तेरे पास पैसे नहीं है तो खर्चा कैसे करेगा. सो इट यू कांट, नाउ आई कैन गिव यू क्रेडिट बट दैट पुट्स यू इन डीपर इन डेट. यस, सो यू आर गोइंग टू डीपर एंड डीपर एंड डीपर इनटू डेट, तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा. तो द आइडिया ऑफ मोक्ष इज रिलेटेड टू द एंड ऑफ डेट. एंड दिस इज तो आई ऑलवेज से कि बनियों का देश है भारत, क्षत्रियों का देश नहीं है, ब्राह्मणों का देश नहीं है, बनियों का देश है. यहां पे हमने कर्म फिलॉसफी लेके आए हैं. तो वाई डज पांडु से कि मेरा पहला बेटा यमराज से होगा, धर्मराज से होगा, क्योंकि उसे पता है कि हिसाब किताब से दुनिया चलती है. तो यमराज हिसाब किताब वाले देवता है. और लक्ष्मी, जब दिवाली की पूजा होती है, लास्ट डे में यम द्वितीया होती है, जब भाई आता है अकाउंट करने के लिए कि मेरी बहन ठीक से रखी गई है नहीं, क्योंकि वो लक्ष्मी है. तो लक्ष्मी का अकाउंटिंग करने के लिए यमराज आते हैं, और वहीं पे बही खाता की बात होती है दिवाली के समय. सो ये कॉन्सेप्ट इट इज ऑब्वियस इफ यू स्टार्ट रीडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस, बट and then I suddenly realized that that's what Garud Puran is all about. So it is about hisab kitab, and when you study the scriptures, it's all, if you see the पिंडदान कैसे होता है, आप श्राद्ध कैसे करते हो, श्राद्ध में भोग क्यों लगाते हो, आप खाना क्यों देते हो, ये सब, it doesn't make sense if you follow the judgment day model. So what happens, look at the ritual practices. If you in Islam there is traditionally you're not supposed to have a grave marker. You're not supposed to have a grave marker. Yeah, you're not supposed to have a grave marker in the Orthodox school. But जितने भी मुगल थे, they came from Central Asia, they said हम तो tombs बनाएंगे. हिंदू धर्म में क्या होता था कि आप जब मरते हो तो आपकी चिता जलती है, and then the ashes are thrown in the river, there is no trace left. But when the Rajput kings saw the tombs being built by the Mughals, they said हमारा जहाँ cremation होगा वहाँ पे आप छतरी बनाओ, हम भी बनाएंगे. तो छतरी concept is there in Rajasthan and all these warrior spaces. It didn't exist before the 10th century. There were some markers, hero stones, जो वीरगढ़ होता था. But this idea of याद नहीं रखना चाहिए. I don't know if you've seen a Hindu funeral ritual, if it is performed by a good priest, he will never refer to the body saying कि ये आपके पिताजी हैं. वो बोलेगा ये dead body है. They treat it very badly because they're saying नहीं 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 वो गए उनको don't look at it because get rid of it. बिकॉज वो अभी अकाउंटिंग में चला गया है. अभी आप फ्यूचर के बारे में, तो गति, सदगति, मूव, बहना है आपको. तो दीज आइडियाज पीपल डोंट रियलाइज कि जब पॉलिटिशियंस की जब समाधि बनाते हैं तो मैं बोलता कि भी आत्म शांति नहीं होगी, वो भटकते रहेंगे भूत के जैसे. बिकॉज आपने समाधि बना दी, या तो उन्हें मोक्ष मिला है विच इज हाईली अनलाइकली, बिकॉज इतना ऋण में है तो कभी नहीं मोक्ष मिलेगा. और उनका फोटो वोटो लगा रहे हैं सब जगह, यानी तो अटक गए यहाँ पे भूत बन के. एकदम अटक. अभी शास्त्र में लिखा है कि फोटो मत रखो अपने, लाइक इन माय हाउस आई ऑलवेज टेल माय सिस्टर्स डोंट कीप पापा मम्मी का फोटो, वापस आ जाएंगे. हो गया, प्लीज गो. नो मेमोरी. श्राद्ध के समय ऐसे खाना देते हैं, तर्पण कैसे देते हैं, शरीर के बाहर, घर के अंदर मत आइए, भूत हो. तो वो पितृ है वो. तो इट इज दिस respectful distancing from the dead. So when people go to Mahatma Gandhi's samadhi, I feel so sad कि बेचारे अभी भी अटके हुए हैं भूलोक में, वैतरणी पार नहीं हुआ है. इतना महान आत्मा होके भी आत्म शांति नहीं मिला, because they have not followed the Hindu rituals. Absolutely, that was so enlightening. तो एक और बहुत interesting concept I read in your book Bakasur Trap. I thought it was just amazing ki how you've said that we treat greed, we dress up greed rather, disguise it as ambition. And to give some context to our listeners, Bakasur is this demon from Mahabharata who has insatiable hunger to the extent that he even devours people who are feeding him. So please guide us through the symbolism of the story and tell us how his hunger you have correlated to modern ambition, consumerism, driven by competition.
So, I have worked with some of the richest and most powerful people in the country. And, it's been a joyful ride because I can afford my flat because of that. So, मैंने दक्षिणा ले लिया तो मेरा ऋण मुक्त तो और उनका भी ऋण मुक्त. लेकिन one thing I noticed is the richest people and the most powerful people I met were the unhappiest, most miserable people I have ever met. इतने दुखी, इतना ambition होता है कि at one time I remember meeting a billionaire and I really felt मैं अपने pocket से पैसे निकाल के 10 रुपए उनके सामने रख देता हूँ. But वो भूखे थे, लेकिन of course we don't use the word भूखे, they'll say I'm very ambitious. So the word is ambitious. तो अब देखो ना, जितने भी वो बिलियनर्स की फोटो देखो, वो सब अपने बाल शेव करते हैं, सब जिम जाते हैं, एंड दे ऑल लुक लाइक वॉरियर्स, कुछ युद्ध करने जाने वाले हैं, और सभी दुखी हैं. उनके डिवोर्स हो रहे हैं, बच्चे सब जेंडर वेंडर चेंज करते रहते हैं, और उनके 10-12 बच्चे हैं, किसी के साथ उनकी पत्नियां में बोटॉक्स लगा के जी रही हैं, और इतने गहने पहन रहे हैं, और उनकी इट्स जस्ट something very creepy about the whole thing. And I'm like, why am I not feeling good? Because, I genuinely said कि जब आप अमीर लोगों के घर जाते हो तो स्वर्ग होगा. वो इंद्र सभा होगी, वहां पे पैसे होंगे, इतना होगा. मुझे डर क्यों लग रहा है वहां जाकर? Whenever I'm invited by a minister, I am trembling. Because उनके 10 security guards होते हैं. कि ऐसे तुम्हें कौन मारेगा? But unke security guards check you out and they're touching you all over the body, which is quite exciting. But have you seen those security guards? Their only job is to touch you. So after वो छुआछूत उधर ही मानते नहीं है वहां पे छुआछूत. तो जाते हैं आप, वो मंत्री से मिलते हैं, and the only thing you feel is, can I give you a hug? They are so sad, and I realize that वो बकासुर बन चुके हैं. वो इतना भूखे बन गए कि वो अपने बच्चों को खा रहे हैं, अपनी पत्नी को खा रहे हैं, अपने घर को खा रहे हैं. Their employees they are eating. So I am scared because they are looking at me as the next meal. और अगर कुछ नहीं दोगे उनको तो वो अपने हाथ पैर खा लेंगे. तो अगर आप हिंदू मंदिर में जाओगे तो वहां पे हमें एक सर होता है जिसे बोलते हैं नजर बट्टू. तो उसकी कहानी है कि वो इतना भूखा था कि वो अपने शरीर को खा गया. अभी भी भूखा है तो डेस्परेटली आपके तरफ देखता है कि मैं तुझे खाऊंगा, तुझे खाऊंगा, तुझे खाऊंगा. तो हर मंदिर में आप देखोगे वो नजर बट्टू होता है. तो ये आपके जितने भी फ्यूचर लीडर्स, वो बिलियनर्स हैं, उनका फोटो वहां पे लगा दो, घर में कभी नजर नहीं लगेगा. तो सब नजर बट्टू. तो वहां से दैट बकासुर का कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड, एंड आई रियलाइज दैट वी आर टेलिंग चिल्ड्रन यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू ग्रो. एंड आई एम ग्रोइंग. बट व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ आर यू टॉकिंग अबाउट? How is it that if you have $1 million and $1 billion, you are better? Because they don't seem better. They look psychotic. ये डरावने लोग हैं. I don't know if you have ever experienced a billionaire. It is an experience. It is better than exorcist. इतना डरावना है वो एक्सपीरियंस. टू गो टू देयर हाउस, वहां पे सिक्योरिटी होगा, आपके हाथ कांपते होंगे बिकॉज वो क्रॉकरी अगर टूट गई तो वो $1 मिलियन का क्रॉकरी होगा. प्राइवेट जेट में अगर बैठ गए तो आपको डर लगेगा कि कहाँ बैठे, वहां बैठे तो नहीं, मम्मी जी वहां बैठती हैं. यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण बैठते हैं तो वहां पे एक डायमंड का सीट होगा. अगर आप बाथरूम में जाओ तो वो गोल्ड का बना हुआ है, तो हाउ कैन यू पी इन अ गोल्डन पॉट? So it's very, very traumatic experience. And from that trauma came Bakasur trap. Because I realized that they're lying to me. मुझे झूठ बोल रहे हैं कि जब पैसे कमाओगे तुम सुखी होगे. That's not, that they're lying. They're lying that if you have money and power, you will be happy. So a whole generation of children are being lied to. Ki if you make money, if you're career successful, you will be a happy person. And if you're productive and efficient and effective, you will be this happy person. And that's a lie. And for 100 years, every education institute in the world is telling lies to children. Because there is no tript, santosh nahi hai. There is no joy, there is no bliss. I don't see the blissful. And then you have these gurujis. Oh my God. Because equally, na, all you have to do is challenge them. Bas, angry Hanuman nikal aata hai. सब वो, सो ये नौटंकी बाज जिसको हम गुरु बोलते हैं, बिकॉज वो संतुष्टता जो होती है.
So, I was reading Jain philosophy and I would always, I'm very deeply influenced by Jainism. Not Jains, but Jainism. Because fark hai, because what is a Jain? He eats vegetarian food. Jain pav bhaji khayega. But जब आप दिगंबर को देखते हो, वो मूर्ति में जो संतोष और शांति जो मिलती है, वो आपको जैनियों में नहीं मिलता है. तो जो दिगंबर की जो मूर्ति है, they are telling you about a person who owns not a shred of things. Why is this idea emerging in India? Because they are trying to communicate something through art. इनके ना पैसा है ना क्या है उनके पास. They look so relaxed. दिगंबर का मतलब क्या है? It is not actually walking around naked. फिर तो हर न्यूड बीच में दिगंबर मिलेंगे. So true. I mean, उन कपड़े में उतार दिया. अरे nonsense, exhibitionist. It is this concept that relaxedness of your mind where you are not attached to anything and you realize the value of money. तो हमारे यहाँ वैकुंठ होता है. वैकुंठ में लक्ष्मी आती है. पैसे तो बहुत है श्री विष्णु जी के पास, लेकिन वो संतोष में है. बिकॉज वो बोलते हैं कि मैं लक्ष्मी से करूं क्या, मैं तो दरिद्र नारायण हूं. एवरीथिंग विच कम्स टू मी आई विल रीइन्वेस्ट इन द मार्केट. मुझे नहीं चाहिए. आपने वो एक बार बोला था कुछ अबाउट वैकुंठ एंड हेवन, मतलब स्वर्ग और तो यही ना. तो ये मैं पूछता हूं कि स्वर्ग और वैकुंठ में फर्क क्या है. स्वर्ग का राजा इंद्र है जिसकी पूजा नहीं करते, वैकुंठ की हम पूजा करते हैं. एंड आई वुड आस्क दिस गुरुजी, इसका फर्क बताओ. सिर्फ बालक आप समझ नहीं पाओगे. There are some words which you can't say in forums, but it begins with C in case you're interested. And that's the most powerful Indian word because it explains things which English just cannot explain. But that's what I look at them and I'm like, oh God, they've never read the script. That's what happens when you study mythology. See, philosophy doesn't give you the visual structure to think what they're trying to communicate. जब मैंने कहा कि चाणक्य जब पैसे के बारे में बताता है, वो वैकुंठ के बारे में क्यों नहीं बताता है अर्थशास्त्र में. तो वो स्वर्ग का निर्माण कर रहा है, वो वैकुंठ का निर्माण नहीं कर रहा है. चाणक्य नीति से युद्ध होगा, देवासुर संग्राम होगा, और आप बच्चों को चाणक्य नीति पढ़ा रहे हो, वैकुंठ के बारे में नहीं बता रहे हो, संतोष के बारे में नहीं बता. नहीं देवदत्त, इफ द चाइल्ड इज कंफर्टेबल एंड कंटेंट, वो एम्बिशियस नहीं बनेगा. हमको तो एंग्री हनुमान चाहिए. तो मैंने पूछा, एंग्री हनुमान का एम्बिशन क्या है बताओ. हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है, नवधि निधि के दाता. प्लीज टेल मी द एम्बिशन ऑफ हनुमान एज पर रामायण. एंड द क्विक आंसर विच विल कम विल बी राम की सेवा करना. आई सेड वाह, टिपिकल कॉर्पोरेट आंसर कि मेरे टीम में सब हनुमान है, मैं राम नहीं बनूंगा, तू मेरी सेवा करता रहे. Because don't you want an employee who only wants to eat bananas? जो सब काम करेगा तुम्हारे लिए, तुम कुछ नहीं करोगे. तो आई सेड आप राम के लायक नहीं हो, लेकिन हनुमान चाहते हो. वाह. तो ये जो मैं पूछता हूं तो फिर बोलते देवदत्त यू आर एंटी नेशनल, तो आप शास्त्र नहीं जानते. तो आई सेड भैया आप तो राम हो नहीं, आप तो वेजिटेरियन हो. So you are not interested in the scriptures. You don't understand what it means to be in Ram Rajya. राम राज्य में राम के बच्चे कुशल लव का मतलब है wandering minstrel. तो Ram's children are in the jungle. आपके बच्चे तो चेयरमैन ऑफ बिग कमिटीज हैं. आप राम नहीं हो. राम की पत्नी जंगल में है, राम के बच्चे जंगल में हैं, वो गरीबी में रह रहे हैं. फॉर वॉट एवर रीजन. आपकी पत्नी तो राजमहल में राज कर रही है, तो राम राज्य नहीं है. उनके पीछे तो बहुत गॉसिप चल रहा है, लेकिन आप तो गॉसिप तो आप तो अच्छे पति देव हो, लेकिन आप राम नहीं हो. द वर्ड कुशलव इज मीन्स जो कथा बताते हैं, दे आर द ओरिजिनल स्टोरी टेलर्स. कुशलव का मतलब है द स्टोरी टेलिंग. तो ऐसे वो स्टोरी देखिए, राम राज्य में लव कुश जंगल में होते हैं. दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट राम की महत्वाकांक्षा. आप महत्वाकांक्षा से आ रहे हो, आप बकासुर हो. बकासुर हो लेकिन आप राम राज्य की मार्केटिंग कर रहे हो. तो ये शास्त्र पढ़िए ठीक से. If you really want, because it will make you happy. The only thing it gives you
is atma sukh. In fact, Tulsidas writes, says, मुझे आत्मरति मिलती है. रति, आत्मरति. ये आत्मरति मैंने नहीं देखा है बिलियनर के पास. And they would hire me to tell about Ramayana and Mahabharata and then say, because I'm not the Deepak Chopra varieties, right? I'm not going to make you feel comfortable. I'm going to tell you what the scriptures tell you because that's what you paid me for. I'm not going to, my job is to tell you what the scriptures say. And if the scriptures make you uncomfortable, boo-hoo. If you can't handle it, sorry. मैं उसको तुम्हारे लिए मैगी नूडल्स नहीं बनाने वाला. I will entertain you, but the scriptures are brutal. और वो तुम्हें लाइन में लेके आएंगे धीरे, अगर तुम्हें सुनना है तो. लेकिन ऋण पे तो विष्णु जी बैठे हैं कि भैया जल्दी क्या है, अनंत समय तक तुम घूमते रहोगे. बिकॉज तृप्ति में मरोगे नहीं ना. जब तक दिगंबर नहीं बनोगे मोक्ष नहीं मिलेगा. ये शास्त्र कह रहे हैं कि दिगंबर बनना है, दिगंबर ही उसको मोक्ष मिलेगा. तो दिगंबर कॉन्सेप्ट इज इट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन थॉट. Nowhere ever the Greeks called gymnosophist. It is extremely deep idea. I think this is not part of Indian knowledge systems. Absolutely. So in your book, you've also shared some ways we can come out of this trap. Can you please share? I think the first thing is, check. बच्चों को पूछिए, do they check if people in the house have eaten? The concept of feeding. हाँ, वो जितने भी तुम्हारे घर में लोग आते हैं जाते हैं वो खाना खाए कि गए हैं कि नहीं, बस उतना देखिए. एक भी आई हैव नॉट सीन अ सिंगल, इन अर्लियर मारवाड़ी फैमिलीज देयर वुड बी दिस थिंग, आप खा के जाइए, बट दे वुड डू इट फॉर गेस्ट्स. आई वुड से चेक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खाना. खाना इज नॉट जस्ट फॉर लंच एंड डिनर. आर यू ओके? बिकॉज यू हैव कम टू द हाउस ऑफ अ वेल्दी मैन. यू शुड, कुबेर के घर आए हो तुम. In fact, drivers, कोई भी Everybody has to be. So you are thinking घर में खाने, then they'll say घर में है तो आप खाना लेके जाओ. This one idea is the beginning of compassion. So true. Because we are living in a world where people are justifying genocide. We are living in a world where people are justifying killing babies. हम अपने बच्चों को बोल रहे be ambitious. We are not telling our children be compassionate. We are proud of children who are ambitious, and we are happy when they behave like psychopaths. And they are so proud of it. Look at my child. And I'm like, but I remember this person saying that, our parents, my parents are religious. So I look at them and said, your parents are they nice people? And then the child gets confused because religious people are not nice. And I'm like, you're not taught your child to be nice. You have failed in parenting. Because they're not going to be nice to their partners. जो उनके लाइफ की, अभी देखो ना, जो सनातनी होते हैं वो बोलेंगे पति परमेश्वर. They'll never say हमसफर. दाम्पत्य, पार्टनर. That is the Vedic way. वेदास में पति परमेश्वर कॉन्सेप्ट नहीं है. It is always partnership. Even in astrology, जो हाउस स्पाउस का होता है उसको पार्टनरशिप हाउस पार्टनरशिप होगा. Because it is never पति परमेश्वर. Because that's a feudal structure. That is not there in the Vedas. So I said, तुम्हें समझ नहीं आता है कि, in fact, in Ramayana, when you read the paragraphs, Ram goes hunting because he's like, Sita has to have good food. So he's hunting all the time because he knows what she likes to eat. We are not allowed to say that on our stage. But, she is getting good, tasty food because वो राजघराने की लड़की है, उसे अच्छा लगता है खाना. और वो राजघराने का खाना खाएगी. जब अगस्त्य मुनि लोपमुद्रा से शादी करते तो लोपमुद्रा कहती कि भैया आई कम फ्रॉम, आई एम अ प्रिंसेस, मुझसे शादी करना है तो काम करो, मुझे प्रिंसेस जैसे रखो, मैं बच्चा दूंगी तुम्हें. सो देयर इज अ नेगोशिएशन हैपनिंग बिटवीन द हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, एंड दीस स्टोरीज आर नॉट टोल्ड. एब्सोल्युटली. और आपने ये कहा था कि कैसे वशिष्ठ एंड सेज अगस्त्य's mother was Apsara Urvashi, but their wives Lopamudra and Arundhati were faithful Sati's wives. Faithful Sati. So what is the difference between Apsara के Apsara बेटे and Sati? want Sati as their As wife. their wives. ये शास्त्र में वेरी क्लियर. ऑल दी अप्सरा, अभी देखिए शकुंतला का जन्म कैसे होता है, विश्वामित्र और मेनका. एंड आफ्टर द बेबी इज बॉर्न द फादर रन्स अवे, द मदर रन्स अवे.
दोनों अपना प्रोफेशन करना चाहते हैं. इट्स लाइक वो डबल इनकम Just abandon, फैमिली. yeah. अबैंडन द चाइल्ड की कोई तो संभाल लेगा इसको. सो आईसीसी इजंट दिस अ मॉडर्न फैमिली. और बच्चा कौन संभालता है? सिंगल फादर, कान्व ऋषि, not mother. So maternal instinct can be present in men also. Absolutely. So Shantanu, when he travels, he finds babies. So all abandoned babies in traditions are always found by men. And abandoning of the child by the mother is not condemned. They are saying, nahi, wo apsara hai. She has other jobs to do. Baby making is not her job. Mother is not her job. Her job is to entertain people. Now these are stories which are told. ऋषियों की माताएं अप्सराएं हैं, पत्नी सती है. तो वो स्टोरी देखिए ना, जेनरेशन में कैसे बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है. तो ये शास्त्र, ये मैं थोड़ी ना बनाया हूं स्टोरी, ये तो है गूगल. आजकल डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट चैट जीपीटी. So now, with your permission, should I open the Yeah, session please, for please. question? Any questions, please? मेरा एक ही प्रश्न है कि जो हम कृष्ण की बात करते हैं, प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा वही हम लोग जी रहे हैं. जी. मुझे एक बड़ी शंका होती है कि मथुरा और वृंदावन और इन सब की डिस्टेंसेस 10 किलोमीटर के अंतर्गत है. तो मुझे ये हमेशा रहता है कि वो कृष्ण जो जेल से भगा करके ले करके गए और बचाया गया, जी जी. आई पर्सनली फील कि उस बच्चे ने कभी सूरज की रोशनी भी देखी होगी, क्योंकि उसके साथ उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी था. ऐसे बच्चे को जब हम कथाओं में दिखाते हैं कि वो गाय चरा रहे हैं, रास रचा रहे हैं, तो ये कितना आपको प्रैक्टिकली लगता है उचित? इससे कहीं ना कहीं वो कृष्ण जो बाद में महारास और रास की तरफ उनका चला जाता है, तो वो स्त्री पुरुष संबंधों तक चला जाता है, तो वो बड़ा लगता है कि हम कृष्ण को एक आइटम बॉय की छवि में डाल देते हैं, जबकि उन्होंने आगे महाभारत और उतनी सब कुछ किया है धर्म स्थापना के लिए, वो जी। व्यक्ति जन्मा है. जी जी. तो मुझे ये बड़ा सशंकित करता है कि जी, ये जी, जी. केवल लोकप्रियता के लिए और तमाम चीज़ों के लिए शायद इसको रचा गया जी होगा. जी. आज के परिप्रेक्ष्य में इसको थोड़ा व्याख्या कर दें. क्या आइटम बॉय बनना बुरा है? गंभीरता को खत्म कर देता है सर. अच्छा, सचमुच? कभी जी. स्त्री से पूछा है, पत्नी से पूछा है कि अगर पति आइटम बॉय होते तो कितना अच्छा मैरिज होता, नहीं सर, वो दाम्पत्य सुख होता, व्रत पूरा होता कि मेरे पति मेरे लिए रात में नाचते हैं. वो सुख नहीं मिला. 7 जन्मों का साथ था, 7 बार भी नहीं नाचे. सर, कितना दुख दे रहे हो आप. नहीं। वो अधर्म है. उस व्यक्ति की जो उस व्यक्ति ने जो जिया आप है, नाच आपके पत्नी के सामने आप थोड़ा तो नाचते होंगे ना, नहीं? या आप उसे बुरा मानते हैं धर्म स्थापना के लिए? नहीं, धर्म स्थापना के लिए जो आप हिंदुइज्म की व्याख्या करते तो हैं, पत्नी की सेवा धर्म नहीं है? एक हद तक है. अब कब तक है ना? पत्नी को कब तक नाच नाच के खुश रखेगा व्यक्ति? आगे पूरे जनरेशन 7 बढ़ानी जन्म, है. 7 जन्म. आगे का जन्म, आगे की जनरेशन भी तो जब- करनी है, भविष्य के लिए भी तो कुछ जोड़ना है, जिसके लिए कृष्ण जन्मे थे. हाँ, कृष्ण राधा के साथ अच्छा। नाचने के लिए नहीं जन्मे थे, जो अच्छा, कृष्ण अच्छा, स्वयं कहते हैं. वो देखो, कहते हैं कि आपके मैं विचार- धर्म स्थापना के लिए अच्छा अच्छा अच्छा. हम लोग आए तो हैं. आप बोल रहे हो धर्म युद्ध भूमि में है, घर में नहीं है. अच्छा, तो ये मैं बहुत ही अच्छा विचार है आपका. जी, चल। धन्यवाद. We've always had that Krishna ji has look after cattle, sit under a tree, played a flute, and he's not necessarily had very masculine traits. He's had he dances, he sings, he does so much. But nowadays, when a man does anything, he sings, he has a feminine pursuit, it's looked down upon. So where do you think that changed for India? So Shiva is feminine for dancing. No, he's not वो feminine. but- नटराज है ना, नटराज. तो आप बोल रहे हो शिव जी जो नटराज कर रहे हैं वो फेमिनिन है? No, what I'm trying I'm to a say little is, confused. I'm so And sorry. Lord is my shepherd in the Bible. वो चरवाहे हैं वहां पे, वो फेमिनिन है. नहीं, I am trying to say that और all भीम खाना पकाता है तो वो No. फेमिनिन है. nahin, I am saying that nowadays in today's world, cooking, dancing are traditionally said to be feminine things. They're said to be that, oh, this is something that a woman is supposed to do. But our mythologies always had men also doing this. You know, So- we need to really talk to your parents. Because that tradition is clearly in your family. So, but no, it is. My mother never did that. My father used to dance and cook. So, And my mother would tell my father how to dance and how to cook. So my there tradition are- is different from your tradition, no? There are a lot of
there are a lot of families or cultures in India that I have friends who've wanted to pursue dance and have been told, oh no, that is something a woman should do. And I don't stand for it. So Do how? you lie to your parents? No. Oh, learn. And sir, Learn. If you want to succeed in life, you have to tell them exactly what they want to you and do exactly what you want to do. Sri How- Krishna ऐसे ही करते थे how can we? कि मम्मी आई एम गोइंग टू मिलिट्री स्कूल एंड देन जॉइन डांस एकेडमी. मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक हमारे अंदर लाइक हमारे अंदर लाइक सुर क्वालिटीज है असुर क्वालिटीज है. जी. तो कभी कभी होता है कि लाइक कभी सुर क्वालिटीज ज़्यादा हो जाता है, कभी असुर क्वालिटीज ज़्यादा हो जाते हैं. तो मेरा क्वेश्चन है कि लाइक अपने अंदर मंथन कैसे करें कि लाइक एक बैलेंस काइंड ऑफ. अभी देखिए सुर और असुर का डेफिनेशन क्या है उसके ऊपर निर्भर है. सुर और असुर का डेफिनेशन क्या है? दोनों कश्यप के बेटे हैं. अमृत मंथन होता है. अमृत मंथन में जितने भी धन धान्य संपत्ति निकला, 14 रत्न निकले, सभी चीज देवताओं ने ले लिया, असुरों को कुछ नहीं दिया. तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी. तो आपके अंदर एक चीज, एक पार्ट है जहां पे सब धन है और दूसरे पार्ट है जहां पे कोई धन नहीं है. इन दोनों के बीच में युद्ध हमेशा रहेगा. द हैव्स एंड द हैव नॉट्स. तो देवासुर संग्राम का मतलब क्या है? देवताओं के पास स्वर्ग में सब कुछ है और असुरों के पास जो पाताल लोक में है उनके पास कुछ नहीं है. पातल पैर के नीचे है. तो आपके शरीर में भी ये the part which oppresses and the part which oppressed, ये दोनों हैं आपके अंदर. You are the predator and the prey. You are the victim and the villain. That is what the scriptures are trying to explain. कि nobody is 100% victim and nobody is 100% villain. Everybody is 50% villain, 50% victim. And that is what Devasur Sangram means. So in a situation, are you a villain or a victim? Every situation you can be a villain or a victim. You can transform. You will think you're a villain, but then you realize you're the victim. Or you think you're the villain and you realize you are the victim. That is what the scriptures are trying to explain. देवासुर का ये जो right wrong definitions जो देते हैं, देखो, start reading my books, then you will know a little bit deeper. हाँ, तो because these definitions of these words have been mutilated and they use this, वो जैसे अमर चित्र कथा में असुरों को हमेशा काला रंग, मोटे रंग और horns वाले लिखाएंगे. That Uncle Pai had not read enough, no? But we respect him. But that just because you respect a person doesn't mean you can't call him less educated. ना? नमस्कार. मेरा आपसे एक प्रश्न नहीं गुजारिश है कि अभी आपने एक उपाय बताया कि इस ट्रैप से निकलने के लिए घर में जो भी आया है उससे आप पूछेंगे कि आप खा के जाइए. तो क्या इसके अलावा भी कोई उपाय है? आपने खाना खाया है, खा के मत जाइए, फिर मम्मी को ही खाना बनाना पड़ेगा. बिकॉज जो पूछ रहा है बच्चे वो मम्मी की तरफ जाएंगे, मम्मी आप खाना बना लो. लेजी है बच्चे. आपने खाना खाया. दूसरों के दुख दर्द समझने के लिए ये एक ही उपाय है. हैव यू ईटन? इन अ कंजम्पशन इकोनॉमी वी आर टू ऑब्सेस्ड. देखिए, शब्द का भाव समझिए. शब्दार्थ में अटक जाएंगे तो आप भावार्थ नहीं समझ रहे हो. आप शब्द में अटक गए, भाव नहीं समझे. वी आर टेलिंग द चाइल्ड टू लुक एट अदर पीपल्स हंगर. जब आप दूसरों का भूख देखने लगते हो, अंदर की बकासुर सामने आ जाता है. जो बिलियनर है वो इतना एम्बिशन है कि वो दूसरे का दुख नहीं देख पाता है. वो भूखा नहीं देख सकता है. He doesn't get it. उनके घर में खाना, अगर if you reduce it to eating food, this is what business families did. कैंटीन रख देंगे, बस सैलरी नहीं देंगे, भरपेट खा के जाना. हाँ, सैलरी सर देखा जाएगा. तो शब्द में मत जाइए, भाव समझिए. शब्द में अटक जाएंगे तो फिर भाव नहीं समझ में आएगा. तो फिर युद्ध भूमि और घर में फर्क नहीं दिखाई देगा. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सर, वी हैव टू. अर्जुन को जब विश्वरूप दिखाया कृष्ण भगवान ने, उसको
देख के वो तृप्त हो गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। अंत में उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप चतुर्भुज रूप में आ जाइए। ये क्या मतलब है? उनका नेचुरल रूप चतुर्भुज क्यों उसमें रिक्वेस्ट? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसके लिए अभी ये फिलॉसफी में जाता है, क्योंकि जब महाभारत आती है तो पहली बार हम विष्णु के बारे में सुनते हैं। तो ये चतुर्भुज शब्द वहां इस्तेमाल करके हम श्री कृष्ण को विष्णु के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो विश्व रूप को लोगों के मन में वो पुरुष के साथ जुड़ा हुआ है जो ऋग्वेद में है। चतुर्भुज रूप ही हम विष्णु के साथ जोड़ते हैं। तो ये एक डायलॉग से जो लेखक है वो श्री कृष्ण को विष्णु के साथ जोड़ रहा है और विष्णु को पुरुष के साथ जोड़ रहा है। तो ये जो पहली बार हमारी जो टेक्सचुअल ट्रेडिशन में ये फर्स्ट इंस्टेंस है वेयर देयर इज अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन कृष्ण, विष्णु एंड नारायण एंड पुरुष। तो ये पहली बार हमें मिलता है ये भगवत गीता में। दैट इज व्हाई भगवत गीता इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट बुक फ्रॉम द वैष्णव पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये टेक्निकल इज अ टेक्निकल आंसर, इसमें कुछ फिलोसॉफिकल डेप्थ नहीं है। इट्स अ टेक्निकल थिंग कि जो वैष्णव है दिखाना कि देखो कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु ही नारायण है, नारायण ही ब्रह्म है। So that's the meaning. Yeah, but we can keep talking about this. Please attend my 4 o'clock session. Thank you. Thank you. आई नो Thank कि you, ये thank you. रोमांचक, चटपटा और गुदगुदाने वाला सेशन हम लोग नहीं चाहते कि खत्म हो जाए, बट आई हैव टू बी द बैड कॉप एंड आई हैव टू स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग मोर क्वेश्चंस। इस वक्त मैं बुलाना चाहूँगी अभय जी को टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज एंड फेलिसिटेट। We would like to thank our hospitality partners, Ashdale Welcome Heritage, Swiss Cottage, Ayar Jungle Camp, Sacklays, and the Pavilion for their support. Our podcast partner, BFC, Basic Funday Clear, for helping us capture and share the voices, not just here, but to our audience far and wide. I would also like to thank our digital media partner, The Print, and our sponsor, IFCO Kisan, and other partners and sponsors for their support. And a very special thank you to our venue partner and hospitality partner, the Kanse Resort. Ladies and gentlemen, as we now break for lunch, please note that the lounge area is strictly reserved only for the authors, speakers, moderators, whereas the rest of you can please go and enjoy our food stalls by Sherwani, the Ball Baker, then we have Kansa Resort, and handicraft stalls, which have showcased a lot of things, we have candles, we have crochet, we have bathing salts, we have home products like ghee, apple cider vinegar, and other treasures which you can take home. Thank you. See you back again at 2:30.